My dear friends, today it's a day of reaping. प्रिय मित्रों, आज तो कटनी काटने का दिन है। We're going to reap the best blessing that God has for us. वो उत्तम आशीष जो परमेश्वर ने दी है, हम उसे पढ़ने पाएंगे। Just look at Proverbs 11:18. नीति वचन 11:18 की ओर देखें। The Bible says, a wicked person earns deceptive wages, बाइबल कहती है, दुष्ट मिथ्या कमाई कमाता है, but the one who sows righteousness reaps a sure reward. परंतु जो धर्म का बीज बोता, उसको निश्चय फल मिलता है। There was a person who was always running around talking to people and not doing his work properly in the office. और दफ्तर में एक व्यक्ति था जो हमेशा इधर उधर भागता रहता, लोगों से बात करता रहता, But in front of his boss, he would act like he's doing the best job. लेकिन अपने अधिकारी के सामने वह ऐसा दिखाता कि वो उत्तम काम को करता है। There was a person who was working very hard in that same office, और उसी दफ्तर में एक व्यक्ति जो कड़ी मेहनत किया करता था, minding his own business. जिसे अपने काम से काम था, But this person would talk all sorts of bad things and reports about him to the boss. लेकिन उस व्यक्ति के बारे में यह पहला व्यक्ति कुछ गलत बातों को अधिकारी को बताता, And so the boss had a bad perception about the good working person. और उस अच्छे काम करने व्यक्ति के बारे में अधिकारी के मन में गलत धारणा थी। And as he was complaining about many things in the office, he thought this person who was complaining was the good worker. और जैसे वो सब बातों के विषय में बात कर रहा था, अधिकारी ने सोचा यह व्यक्ति जो सब बातों के विषय में बात कर रहा है, वो तो अच्छा काम करने वाला व्यक्ति है। So he put him on higher wages and higher positions. और उसे उच्च स्तर पर अच्छे वेतनमान में रखा। And he would always cozy up to the boss and show other people's work as his own work. और वह दूसरों के कामों को अपने काम को दिखाकर अधिकारी के करीब रहता। So the boss was so impressed and put him on top. और इसलिए अधिकारी ने उसे ऊंचे स्तर पर रखा। But then finally all his wicked acts he could not maintain. लेकिन अंत में अपने हर एक दुष्ट काम को वो संभाल ना पाया, Because there were so many lies. क्योंकि बहुत सारे झूठ थे। One came out in the open. और एक खुलकर सामने आया। And they inquired about him and found all these things. और उसके बारे में जानकारी हासिल की और सभी झूठ को पकड़ा, All the negative reports. हर एक नकारात्मक रिपोर्ट। And the boss was so furious and fired him on the spot. और वह अधिकारी तो काफी नाराज हुआ, गुस्सा हुआ और उसे नौकरी से निकाल दिया। And you know, he identified that this good working person was very true. और उस अधिकारी ने इस बात को जाना कि यह अच्छा काम करने वाला व्यक्ति सच्चा पुरुष है। And he took and gave that same position and salary to that good worker. और वही वेतनमान और वही उच्च स्तर को उसने इस व्यक्ति को दे दिया। Instantaneously he was elevated. और तुरंत ही उसे ऊंचा उठाया गया। Yes, my friends, this verse is so true. हाँ मित्रों, यह वचन तो सत्य A है। wicked person earns deceptive wages. दुष्ट तो मिथ्या कमाई कमाता है। It might seem that they're rising, और यह दिख सकता है कि वह ऊंचे उठ रहे हैं, but it's not permanent. It's very deceptive. लेकिन यह तो छलावा है और यह स्थायी नहीं है। They are on shaky ground. वह तो अस्थिर जमीन पर है। But the one who sows righteousness लेकिन जो धर्म का बीज बोता है, does things right before man and God, जो परमेश्वर और मनुष्य के सामने सही कामों को he करता, reaps a sure reward और वह तो प्रतिफल को निश्चय with a पाएगा, strong foundation. एक मजबूत नींव That के blessing साथ। from God will never be taken away. और परमेश्वर की वह आशीष उससे नहीं ली जाएगी। I know you're waiting for your blessing because you've sowed in मुझे righteousness. मालूम है आप अपने प्रतिफल के इंतजार में हैं, क्योंकि आपने धर्म का बीज बोया है। Shall we receive it? क्या हम इसे ग्रहण करें? Loving Lord, प्रेमी परमेश्वर, come and do justice for your children. आकर अपने बच्चों का न्याय चुकाएं। They have done their work the best way, Lord. उत्तम रूप में उन्होंने अपने कार्यों को But किया they है, might have faced injustice in the workplace, लेकिन अपने कार्य क्षेत्र में अन्याय का सामना किया, false accusation, गलत इल्जाम, and people would have not looked at them to reward them. और लोग उनकी ओर नहीं देखते कि उन्हें ऊंचा उठाए, प्रतिफल दे। But you are our rewarder. लेकिन आप हमारे प्रतिफल है Father, परमेश्वर। you give us a sure reward. पिता, आप हमें निश्चय प्रतिफल दे। You give us a mighty reward. आप हमें अच्छा प्रतिफल Let दे। this mighty reward come upon your children. और ये उत्तम प्रतिफल आपके बच्चों के ऊपर आ जाए।
Let it eternally stay upon them. और ये सदाकाल के लिए उन्हें मिल जाए Let it elevate them with a promotion. और पदोन्नति के साथ उन्हें ऊंचा उठाए Elevate them with a high income job. और अच्छे वेतन के साथ उन्हें ऊंचा उठाए Give them a high placement in the college. और कॉलेज में उन्हें अच्छे प्लेसमेंट मिले। Master, let their future be so high, rising up in their career. स्वामी, उनका भविष्य तो बहुत ऊंचे स्तर पर उठाया जाए Let them be a blessing. और वह आशीष का कारण बने। In Jesus' name, यीशु के नाम में amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आशीषित करे। My precious friend, मेरे बहुमूल्य दोस्तों, through the television program टेलीविजन प्रोग्राम के द्वारा, and through the social media programs, सोशल मीडिया प्रोग्राम के द्वारा, which we send out to thousands of people every day, जो हम हर दिन हजारों लोगों को भेजते हैं, God's power flows into the people. परमेश्वर की सामर्थ लोगों में बहती है, Miracles happen. चमत्कार होते हैं, Tears are wiped away. आंसू पोंछे जाते हैं Lives are built. और जीवन उभारा जाता है। We are looking for sponsors for every program that comes through social media every day. हर एक दिन सोशल मीडिया के माध्यम से जो हर एक प्रोग्राम आता है उसके लिए हम स्पॉन्सर्स चाहते हैं। And as your co-sponsor or sponsor, we'll have your names there and your prayer requests, and I'll be personally praying for you. और जैसे कि आप को स्पॉन्सर होते हैं या स्पॉन्सर होते हैं, आपके नाम वहां पर होंगे और मैं व्यक्तिगत रीति से आपके लिए प्रार्थना करूंगा। Millions who watch will also pray for you. लाखों लोग जो वो प्रोग्राम देखेंगे वो भी आपके लिए प्रार्थना करेंगे। God will bless you. प्रभु आपको आशीष दे। We'll send you a copy also. हम आपको कॉपी भी भेजेंगे। So please call this number. तो कृपया इस नंबर पर फोन कीजिए। When you have the birthday, चाहे आपका जन्मदिन हो, your birthday or your loved one's birthday, आपके प्रियजनों का जन्मदिन हो wedding anniversary, या शादी की सालगिरह हो, or the loss of a loved one, a memorial day, या फिर किसी प्रियजन को आपने खो दिया है और उनके मेमोरियल का दिन है, or a Thanksgiving offering, या फिर धन्यवाद की भेंट है, or giving 1 month's salary as the first month's salary when you get a job, या फिर जब आपको नौकरी मिलती तो आप महीने की पहली तनख्वाह दे देते हैं। you can honor God. आप इस तरह से प्रभु का आदर कर सकते हैं। All your donations are going for the service of the people in the name of Jesus. आपके सारे डोनेशन लोगों की सेवा के लिए यीशु के नाम में जाएंगे। Here's how you can support. आप इस तरह से मदद कर सकते हैं। लाखों लोगों की आंसुओं को पहुंचने के लिए आप यीशु बुलाता है कि टेलीविजन कार्यक्रम प्रायोजित कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे वेबसाइट www.jesuscause.org में पधार सकते हैं, नहीं तो अपने निकटवर्ती प्रार्थना भवन में भी आप आ सकते हैं।